Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Previous lecture में हमने जो discussion लिया था, that discussion was regarding bond cleavage or bond fission. That was homolytic bond fission and heterolytic bond fission. So continuing with our basic concepts to understand organic chemistry, our second topic today that will be attacking reagents. First of all, we should know what are attacking reagents, and second point, we should know what are the types of attacking reagents. Attack reagents कौन से types use करते हैं हम organic reactions में. तो सबसे पहले attacking reagent समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर मैं कोई general reaction लिखता हूँ, generally we write that reactant is converted to product. ये general form किसी भी reaction की है. That you start from the reactant and finally you will get the formation of product. ठीक, लेकिन majority of organic reactions थोड़ा different तरीके से proceed करते हैं. That is, organic reactions में कुछ इस तरीके से होता है. Before the formation of product, we get some unstable species. जिनको हम कहते हैं intermediates. These are highly reactive fragments. बहुत ही ज़्यादा reactive fragments होते हैं. These fragments then quickly get converted to product. So before reactant gets converted to product, we get highly reactive fragments, and those highly reactive fragments are named as intermediates. ठीक है? So organic reactions में before reactant gets converted to product, we get the formation of highly reactive fragments. These are called as intermediates. Clear? Now, जो reaction होती है organic reaction, reactant में दो हिस्से होंगे. Main reactant that is reacting, उसको हम कहते हैं substrate. The main reactant that does react in an organic reaction is called as substrate. Substrate is being attacked by molecules or ions called as attacking reagents. Attacking reagent, ठीक है? तो attacking reagent attack करेगा, react करेगा substrate के साथ. Then it results in the formation of intermediate, which gets converted to product. ठीक है? एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान ले हमारे पास है CH3Cl क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन को आप रिएक्ट करा रहे हो OH नेगेटिव के साथ, एंड यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, और इस प्रोसेस में Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है. ठीक है? This CH3Cl molecule, chloromethane, ठीक है, that's main reactant in this reaction. इस main reactant को आप नाम दोगे substrate, और इस substrate के साथ react कौन कर रहा है? OH negative. This OH negative is called as attacking reagent, या इसको हम बाद में न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे. फिलहाल मैं इसको नाम दूंगा attacking reagent. ये हमारा मेन रिएक्टेंट है, दैट इज सबस्ट्रेट. ठीक है? सो जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, वी विल हैव टू स्पीशीज ऑन रिएक्टेंट साइड. वन मेन रिएक्टेंट जिस पे अटैक होता है उसको कहेंगे सबस्ट्रेट, और जो अटैक करेगा उसको आप कहोगे अटैकिंग रिएजेंट, एंड फाइनली विल गेट इंटरमीडिएट, एंड देन फाइनली विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक. तो सबसे पहले व्हाट इज एन अटैकिंग रिएजेंट? ये अटैकिंग रिएजेंट है क्या? अटैकिंग रिएजेंट इज अ मॉलिक्यूल और एन आयन दैट रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट so as to form the products. Attacking reagent is a molecule or an ion that attacks the substrate, that reacts with the substrate and converts that into the product. That molecule or an ion is known as attacking reagent. ठीक है? चलो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले attacking reagent क्या है. What is attacking reagent? So attacking reagent
molecule or an ion that reacts with substrate to form the product is called as attacking reagent. So attacking reagent, a molecule or an ion that reacts with the substrate to form the product is called as attacking reagent. As far as attacking reagent is considered, attacking reagent is divided into two types. इनके दो कैटेगरीज आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड न्यूक्लियोफाइल. Attacking reagent is classified into two types. First type is electrophile and second type is nucleophile. ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से. लेट मी स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल है क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा आयन इलेक्ट्रोफाइल है? विल गो विद डिस्कशन ऑफ दैट. सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक. As far as the name electrophile is considered, electro means electron and phile means love. जो मॉलिक्यूल या आयंस इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उनको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल्स हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, दे हैव इलेक्ट्रॉन लविंग कैपेबिलिटी. ठीक है, जिस मॉलिक्यूल जिस आयन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन लव हो, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन कैसे कर लेंगे? Any molecule or an ion that is capable of accepting electrons. कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन जिसको टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और उनको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जिसको टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल है क्या? Any molecule or an ion that is capable of accepting one or more electrons, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल. कोई मॉलिक्यूल या आयन जिसको टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का. What is condition of a molecule or an ion to behave as an electrophile? इसकी कंडीशन क्या है? कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा आयन बिहेव कर सकता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल? कंडीशन एक ही है. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? दैट कंडीशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स. जिस मॉलिक्यूल को टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल्स की. तो मैं उसी मॉलिक्यूल या उसी आयन को कह सकता हूं एज एन इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल हो. ठीक है, सो कंडीशन नंबर 2, इलेक्ट्रोफाइल
should have electrophile should have the availability of vacant orbitals ये है टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल और एन आयन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. दिस इज कंडीशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और एन आयन टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. थर्ड पॉइंट, सिंस दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, we can say usually electrophiles are Lewis acids. What is Lewis acid? Lewis acid is any molecule or an ion that is capable of accepting one or more electron pairs. ठीक है. तो इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन लेविस एसिड कम से कम एक पेयर एक्सेप्ट करेगा. सो यू कैन से एवरी इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट अ लेविस एसिड, बट एवरी लेविस एसिड इज एन इलेक्ट्रोफाइल. जो एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर यूजुअली कॉल्ड एज लेविस एसिड्स. सो दे हैव द टेंडेंसी to behave as a Lewis acids, that is electron pair acceptors. ये है पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ रिएक्ट करेंगे, किस जगह अटैक करेंगे, बिकॉज दे आर अटैकिंग रिएजेंट्स, वन ऑफ द टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स. इलेक्ट्रोफाइल्स किस जगह पे अटैक करेंगे, किस जगह पे रिएक्ट करेंगे, उस जगह की खासियत क्या होनी चाहिए. दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, बिकॉज दीज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये इलेक्ट्रोफाइल्स उसी जगह पे अटैक करेंगे. ठीक है. सो इलेक्ट्रोफाइल्स have the tendency, or electrophiles attack or react at those points, those centers where there is high electron density. So they react at high electron density centers. Next point, electrophiles react or attack at high electron density centers. Electrophiles react or attack at high electron density centers. तो ये कहाँ पे रिएक्ट करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है. तो ये वहीं पे अटैक करेंगे बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज पॉइंट नंबर 4 विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल्स. नेक्स्ट पॉइंट, एज फार एज इलेक्ट्रोफाइल्स आर कंसिडर्ड, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल्स, जिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जो इंशाल्लाह 12th में बार बार पढ़ोगे. तो जिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल्स इन्वॉल्व होगी, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा, उन रिएक्शंस को आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. ठीक है. सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग electrophiles are called as electrophilic reactions. उनको आप कहोगे electrophilic reactions. ठीक है. Next point regarding electrophiles. We can say usually they are electron deficient, but not necessarily. Electron deficiency condition
टू बी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ, यूजुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी कि हर केस में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। हाँ, कहीं कहीं केस में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास डिफिशिएंसी है, तो इस वजह से क्विकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, ठीक है। यू विल सी, आगे हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स में कोई डिफिशिएंसी नहीं है, तब भी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। सो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी नहीं है, बट वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल्स आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। Electrophiles are usually electron deficient, usually electron deficient, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देंगे इलेक्ट्रोफाइल्स की। H पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है, AlCl3 है, BF3 है, CO2 है, etc. ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो आज था दैट्स अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट का पहला टाइप जो है दैट्स इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? एनी मॉलिक्यूल और एन आयन दैट हैज कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल की? कंडीशन एक ही है, इलेक्ट्रोफाइल शुड हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है। तीसरा पॉइंट, सिंस दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट किए देन दे वर ऑब्वियसली कॉल्ड एज लेविस एसिड्स। लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। नंबर 4, इलेक्ट्रोफाइल्स किस जगह रिएक्ट करेंगे, किस जगह अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स दे आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से ये उस जगह पे अटैक करेंगे, उस जगह पे रिएक्ट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल्स नॉट नेसेसरली, आई विल रिपीट दिस पॉइंट, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, बट यूजुअली दे कैन बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। नाउ वी विल गो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स की क्लासिफिकेशन है क्या? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उस बेसिस पे हम इलेक्ट्रोफाइल्स को 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन the way by which electrophiles, depending upon the way of tendency by which electrophiles classify, by which electrophiles accept electron, we classify electrophiles in 4 types, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की क्या कंडीशन है, इसमें क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इनकी क्वालिटीज क्या है, उस बेसिस पे हम इलेक्ट्रोफाइल्स को क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में, ठीक है। सो वी विल से क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। पहला टाइप 1, जिसको मैं कहूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा C1, कैटेगरी 1। ये इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोफाइल्स की क्वालिटी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। आई रिपीट, पॉजिटिवली चार्ज्ड विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। नंबर 2, इनकी जो वैलेंस शेल है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, दैट शुड बी इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं है, इनकी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है और इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो आई विल राइट हियर कैटेगरी 1, पॉजिटिवली चार्ज्ड
positively charged with incomplete valence shell, with incomplete valence shell। ठीक है, सो इनकी दो क्वालिटीज है, एक तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्वालिटी नंबर 1, और दूसरा इनकी जो वैलेंस शेल होनी चाहिए दैट शुड बी इनकम्प्लीट। दिस इज टाइप 1 और कैटेगरी 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, X पॉजिटिव। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस कैटेगरी 1 में या टाइप 1 ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। H पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है, X पॉजिटिव। लेट मी चेक, क्या ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं? क्या ये पहली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, क्या ये दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, लेट मी टेक H पॉजिटिव। इन सभी पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, पॉजिटिवली चार्जड है। दूसरी कंडीशन है इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लोगे, हाइड्रोजन इज 1s1, ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल पहली ही है, लेकिन यहाँ H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये बनेगा ऑब्वियसली 1s0। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पहली शेल यानी इसकी वैलेंस शेल जो है, जो पहली शेल है दैट इज इनकम्प्लीट, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी। और थर्ड, जब आप कंडीशन देखोगे, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास ये 1s ऑर्बिटल जो है वो खाली है। पहले तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये लूज कर दिया इसने, वो ऑर्बिटल भी इसके पास खाली है, वैकेंट है। इस वजह से मैं इसको कहूंगा पॉजिटिवली चार्ज्ड विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। क्लियर? चलिए हैलोजन की बात करेंगे, X पॉजिटिव। मान लीजिए हमने लिया क्लोरीन पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव नॉट पॉसिबल, ब्रोमीन पॉजिटिव कैन बी देयर, आयोडीन पॉजिटिव कैन बी देयर, क्लोरीन पॉजिटिव। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3s2 3p5। ठीक है, तो इसके जो वैलेंस शेल है, थर्ड शेल, उसमें यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, बट रिमेंबर दैट इट कंटेन्स 3p5। जब क्लोरीन पॉजिटिव बनेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर, ये क्लोरीन पॉजिटिव। तो क्लोरीन पॉजिटिव में पहली बात तो वैलेंस शेल कंप्लीट है ही नहीं, एक ऑर्बिटल तो खाली है। ठीक है, सो पहली बात पॉजिटिव चार्ज भी है, वैलेंस शेल कंप्लीट भी नहीं है। ठीक है, अब क्लोरीन पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी दैट विल बी 3s2 3p4। इसमें तो 6 बराबर होने चाहिए, 8 बराबर होने चाहिए, भी तो 6 ही है, इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है, वैलेंस शेल भी कंप्लीट नहीं है। और तीसरा आप देख लीजिए, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इट डज कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल, तो हम इसको कहेंगे दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। और जो कंडीशन इलेक्ट्रोफाइल की है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, दिस इज द टाइप 1 और कैटेगरी 1 इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली यू कैन go to NO2 positive, you can go to CH3 positive। अगर आप CH3 positive देखोगे, CH3 positive ऐसे, CH3 positive, कार्बन इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 ही है, 8 होने चाहिए, 6 ही है, पॉजिटिव चार्ज भी है, वैलेंस शेल कंप्लीट भी नहीं है। दिस विल बी कैटेगरी फर्स्ट, दैट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। ठीक है, सो दिस इज टाइप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए टाइप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल में? एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। नंबर सेकंड, it should contain incomplete valence shell। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप पे जाते हैं, टाइप 2 और कैटेगरी 2 ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। ये कौन सी कैटेगरी है, इनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कैटेगरी 2, दैट इज न्यूट्रल,
neutral with incomplete valence shell, neutral with incomplete valence shell, neutral with incomplete valence shell। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ये पॉजिटिवली चार्जड थे, ये न्यूट्रल है, और इनकी वैलेंस शेल भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए लेट मी टेक न्यूट्रल इनकम्प्लीट वैलेंस शेल की एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक, इट कंटेन्स 3 बॉन्ड्स, तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जरा चेक कर ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 होने तो चाहिए थे 8, लेकिन 6 ही है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैलेंस शेल है दैट्स इनकम्प्लीट, लेकिन क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, देन वी कैन से न्यूट्रल विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। अनदर एग्जांपल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अगर आप AlCl3 को ओपन करोगे, इट्स क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एल्युमिनियम, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो होने चाहिए, 6 ही है। तो इसका मतलब है वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, ठीक, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, सो वी कैन क्वालिफाई दिस विद न्यूट्रल इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। अनदर एग्जांपल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। ओपन कर दे इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन। सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कितने, 1 2 3 4, 4 ही है, 8 होने चाहिए, तो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है और कोई चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल भी है। सो दिस इज कैटेगरी 2, ये होने चाहिए न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा इन पे, लेकिन इनकी जो वैलेंस शेल है दैट विल बी इनकम्प्लीट, दैट्स टाइप 2 इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, चले टाइप 3 इलेक्ट्रोफाइल्स। टाइप 3 इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? टाइप 3 इज न्यूट्रल, कंप्लीट वैलेंस शेल, न्यूट्रल भी है, कंप्लीट वैलेंस शेल भी, यानी वैलेंस शेल भी कंप्लीट है, तब ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इनकी जो वैलेंस शेल है दैट इज एक्सपैंडेबल। एक्सपैंडेबल का मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सपैंड देयर वैलेंसी, और एक्सपेंशन के पीछे जो उनका रीजन है दैट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गए, इनकी बैलेंस शेल भी कंप्लीट होगी, लेकिन इनकी जो बैलेंस शेल है वो एक्सपैंडेबल है, वी कैन एक्सपैंड दैट। इनकी बैलेंसी बढ़ सकती है, और किस वजह से बढ़ सकती है, दैट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो टाइप 3 neutral with complete valence shell, with complete valence shell, but expandable, ठीक है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होगा, वैलेंस शेल भी कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन वैलेंस शेल इनमें एक्सपैंड हो सकती है, एक्सपैंडेबल वैलेंस शेल है, और ये एक्सपैंड किस वजह से होगी, मेनली बिकॉज ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहली एग्जांपल PCl3 को जब आप Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl4 नेगेटिव। ठीक, जरा चेक कर लेते हैं, PCl3 को ओपन कर लेंगे, फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 यूज हो चुके हैं, तो इसका मतलब है अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट विल इन द फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर। जरा चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कंप्लीट वैलेंस शेल है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। क्यों किया एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन? इट इज बिकॉज के फॉस्फोरस के पास अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, इट कंटेन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, जरा कैसे देख लेते हैं। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन 3s
3p, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब पी फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, तो इसमें से क्लोरीन के फिर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिनको मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलिए ये बन गया PCl3। तो ये वाले ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड्स बनाएंगे रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3। लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा क्लोरीन ने कहाँ एक्सेप्ट किया, इसके पास तो सारे ऑर्बिटल्स यूज हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट 3s3p के बाद इसके पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये वैकेंट ऑर्बिटल्स के पास है, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स यूज करके, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स यूज करके क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्स्ट्रा क्लोरीन आया है, चौथा क्लोरीन, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको यहां देगा और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के ही हो गए। तो ये बिहेव करा एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिस वैकेंट डी ऑर्बिटल को यूज करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl4 नेगेटिव, एंड हेंस वी कैन से दैट इट हैज द टेंडेंसी टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो कैटेगरी क्या है? न्यूट्रल, कंप्लीट वैलेंशियल बट एक्सपैंडेबल, ये है इसका क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स में लेते हैं। Let me take another example. SF4 plus 2F negative, it results in the formation of SF6 2 negative, ठीक है। Similarly silicon tetrachloride plus 2Cl negatives को दीजिए SiCl6 2 negative, ठीक है। ये सारे के सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। इसके पास भी 3d ऑर्बिटल वैकेंट, इसके पास भी 3d ऑर्बिटल वैकेंट, इसके पास भी 3d ऑर्बिटल वैकेंट, ठीक है। तो ये 3d ऑर्बिटल्स यूज करके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे एंड हेंस कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सो क्या थी कंडीशन कैटेगरी 3 का? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा, कंप्लीट वैलेंशियल, इनकी जो वैलेंशियल है उसमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट है, बट एक्सपैंडेबल, एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी वैलेंसी को, ठीक है। वैलेंशियल के को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्यों एक्सपैंड कर सकते हैं? क्योंकि मेनली इनके पास अवेलेबिलिटी होती है वैकेंट ऑर्बिटल्स की, और मेनली दोज वैकेंट ऑर्बिटल्स आर डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? ये हो गया कैटेगरी 3। Now let's move to category 4. Fourth type of electrophile कौन सा होगा? That's a relatively different. Neutral, complete valential, neutral भी है, valential भी, complete भी है, non-expandable valential, यानी valential को expand नहीं कर सकते। अगर neutral है, valential भी complete है, एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हाउ दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एक अजीबोगरीब तरीका है। दे ब्रेक वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड और उस बॉन्ड को सैक्रिफाइस करके ये दूसरा बॉन्ड बनाएंगे और जिस बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो इनके पास ऑलरेडी कुछ बॉन्ड्स हो गए, ये अपने किसी एक बॉन्ड को तोड़ देंगे और इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, ठीक है। सो ओल्डर बॉन्ड इज सैक्रिफाइस एट द कॉस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल भी है, कंप्लीट वैलेंशियल भी है, नॉन एक्सपैंडेबल भी है, बट दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बाय ब्रेकिंग वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, ठीक है। सो टाइप 4 कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 है क्या? न्यूट्रल विथ कंप्लीट वैलेंशियल, विथ कंप्लीट वैलेंशियल, नॉन एक्सपैंडेबल, ठीक है, बट कैन
accept electrons by breaking one of the existing bonds. One of the existing bonds. ठीक है, चलो देख लेंगे। न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होगा। कंप्लीट वैलेंस शेल है, इनकी वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट, इनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन एक्सपैंडेबल, ये अपनी वैलेंस शेल को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे? दे कैन एक्सेप्ट बाय ब्रेकिंग वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। अपना जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड कोई एक होगा इनमें, तो उस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज कैटेगरी 4। लेट मी चेक एग्जांपल। लेट मी टेक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ लिविस एसिड, ठीक है। जरा इसको चेक कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 न्यूट्रल है। कार्बन सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो न्यूट्रल भी है, कंप्लीट वैलेंस शेल भी है। कार्बन की सेकंड वैलेंस शेल है, सेकंड शेल में, ठीक है, 4 ही ऑर्बिटल्स है, s और p के 3, चारों के चारों यूज हो सकते हैं। तो फर्दर कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एक्सपैंड नहीं हो सकता है, तो एक्सपैंड भी नहीं हो सकता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करेंगे? ठीक है, लेट मी शो एन एग्जांपल। मान लीजिए इस पे OH नेगेटिव आया इलेक्ट्रॉन देने, ये OH नेगेटिव जब कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा? इट विल ब्रेक वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा, जिसकी वजह से ये नया बॉन्ड यहां से एक्सेप्ट करेगा। कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। वो तो 4 बॉन्ड्स बना चुका पहले, तो 5वां बॉन्ड नहीं बन सकता। तो ये क्या कर रहा है? तो यहां से अगर ये नया बॉन्ड बना है, लेकिन उसमें से ओरिजिनल एक जो पुराना बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, एंड हेंस इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन बाय ब्रेकिंग वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स दैट इज देयर। अब देख लीजिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहां से डबल बॉन्ड O होगा, अब यहां से सिंगल बॉन्ड O ही होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये होगा OH, ठीक है। सो ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक। और दूसरी बड़ी बात जो इसमें देखोगे, इसने कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया? इसने पाई बॉन्ड तोड़ दिया। पाई बॉन्ड हैज बीन ब्रोक, पाई बॉन्ड हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। और जो नया बॉन्ड इसने बनाया, वो नया बॉन्ड जो इसने बनाया वो है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड तोड़ दिया। इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया और वीकर बॉन्ड तोड़ दिया, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वीकर बॉन्ड्स। सो इसने एक वीक बॉन्ड सैक्रिफाइस किया एट द कॉस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कैसे कर रहा है? इसकी वैलेंस शेल भी कंप्लीट है, न्यूट्रल भी है, नॉन एक्सपैंडेबल भी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है एक्सेप्ट? ये अपने एक पुराने बॉन्ड को तोड़ देता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ देगा, एंड इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। और जो बॉन्ड्स ने ब्रेक किया दैट्स वीकर बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और जिसने नया बॉन्ड बनाया दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिमिलर कैन एग्जांपल ऑफ SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, न्यूट्रल है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, इट हैज एक्सपैंडेड ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ठीक है। तो इसका एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, इसने वैलेंस शेल भी कंप्लीट की है, न्यूट्रल भी है, ठीक है। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने आ जाएगा, मान लीजिए OH नेगेटिव, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द सल्फर एंड इट विल ब्रेक वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। तो यहां से जो नया बॉन्ड बन रहा है दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड, और जो बॉन्ड ये तोड़ रहा है दैट विल बी पाई बॉन्ड। So this molecule is sacrificing weaker bond at the cost of the formation of a new stronger bond. This is category 4 type of electrophile. ठीक है? So we have characterized electrophiles into 4 categories. Category 1, 2, 3, 4. पहली कैटेगरी की क्वालिटी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए। कैटेगरी 2
न्यूट्रल विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, न्यूट्रल होने चाहिए और वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए। कैटेगरी 3 न्यूट्रल कंप्लीट वैलेंस शेल बट एक्सपैंडेबल, ये अपने वैलेंस शेल को एक्सपैंड कर सकते हैं। उसका रीजन है उनके पास अवेलेबिलिटी है होती है वैकेंट ऑर्बिटल्स की, मेनली ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड 4 जो न्यूट्रल भी है, वैलेंस शेल भी कंप्लीट है, नॉन एक्सपैंडेबल है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं बट ब्रेकिंग वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। दिस वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट अगर दिस इलेक्ट्रोफाइल्स, अगर हम इन इलेक्ट्रोफाइल्स को सम अप कर लेंगे as far as electrophiles are considered, electrophiles को अगर हम sum up कर ले, as far as electrophiles are considered, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, किस इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, which of these is strongest electrophile, इनमें strongest electrophile कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इसके पास भी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, इसके पास भी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, इनको स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल है दैट इज इनकम्प्लीट। इस वजह से ये दो कैटेगरी स्ट्रॉन्ग हो गए। अब इनमें कौन सी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी होगी, ये वाला, बिकॉज इट डज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सो कैटेगरी 1 इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी को आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर सबसे टॉप पे आएगा C1, ठीक है। वैलेंस शेल भी इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। C1 के बाद ऑब्वियसली C2, क्योंकि इसकी भी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, इसकी भी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, लेकिन इन दोनों में फर्क है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, स्ट्रांगली रिएक्टिव होगा, तो C1 ग्रेटर देन C2। अब तीसरा न्यूट्रल बट एक्सपैंडेबल, यहां पे भी न्यूट्रल नॉन एक्सपैंडेबल है, लेकिन इसको बॉन्ड तोड़ना होगा। बॉन्ड तोड़ना फेवरेबल प्रोसेस नहीं है, उसमें एनर्जी लगेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि इसको बॉन्ड तोड़ना होगा, और C3 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, C3 ग्रेटर देन C4। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ these 4 molecules, these 4 types of electrophiles, C1, C2, C3, C4। सबसे ज्यादा C1, फिर C2, फिर C3, फिर C4, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, देयर आर सम कैटायन जैसे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम एंड हाइड्रोनियम, रिमेंबर अक्सर ऑब्जेक्टिव आ चुका है। क्या इलेक्ट्रोफाइल्स है, पॉजिटिव चार्ज होना काफी नहीं है। मैंने पॉइंट नंबर 2 लिया, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, ना तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, बट दे हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि ये भी H पॉजिटिव दे सकता है, ये भी H पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है, दोनों H पॉजिटिव दे सकते हैं। H पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये दो मॉलिक्यूल्स बिहेव कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव, बट दे देमसेल्व्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, बट दे हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम इसके एंड पे कर लेंगे, क्वेश्चन होगा, मैं कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स देता हूं, इनको अरेंज करना होगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स लेंगे एंड लेट अस सी कि इनका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले H पॉजिटिव, देन आई विल टेक SO3, then I will take SiCl4, and then I will take AlCl3। ये 4 कैटेगरीज इलेक्ट्रोफाइल्स के, आप इनको ऑर्डर दीजिए। H पॉजिटिव, it is positively charged with vacant with incomplete valence cell, तो ये कैटेगरी 1 का आएगा। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, लास्ट में डिस्कस किया, ये पाई बॉन्ड तोड़ देता है, कैटेगरी 4। न्यूट्रल कंप्लीट वैलेंस शेल, नॉन एक्सपैंडेबल बट कैन एक्सेप्ट बाय ब्रेकिंग वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, तो ये आएगा कैटेगरी 4। SiCl4, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है लेकिन एक्सपैंडेबल है, ये आएगा कैटेगरी 3 पे। AlCl3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 3 ही बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैटेगरी 2 पे आएगा।
Already we know that your reactivity order है that C1 greater than C2 greater than C3 greater than C4. तो सबसे पहले आएगा H पॉजिटिव के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, देन वी विल हैव SO3. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे सकते हैं. होगा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन. क्वेश्चन है ऐसा, which of the following is weakest electrophile? Which of the following is weakest electrophile? इनमें weakest electrophile कौन सा होगा? ठीक है, देख लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट H पॉजिटिव, ऑप्शन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड CH3 पॉजिटिव, ऑप्शन 4 BF3. इनमें वीकेस्ट कौन सा होगा? H पॉजिटिव वी नो दैट कैटेगरी 1, CO2 1 एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ देगा कैटेगरी 4, CH3 पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट वैलेंशियल है कैटेगरी 1, BF3 कैटेगरी 2 होगा, इनकम्प्लीट वैलेंशियल बट न्यूट्रल. ठीक है, तो वीकेस्ट का मतलब कैटेगरी 4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ठीक है, ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन, which of the following is not electrophile? Which of the following is not electrophile? इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ठीक है, पहला X पॉजिटिव, सेकेंड BeCl2, थर्ड SF4, फोर्थ H3O पॉजिटिव. इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? X पॉजिटिव ऑलरेडी डिस्कस्ड कैटेगरी 1, BeCl2 इनकम्प्लीट वैलेंशियल कैटेगरी 2 न्यूट्रल है, SF4 अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स तो एक्सपैंड कर सकता है, एक्सपैंडेबल होगा तो कैटेगरी 3. हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये किसी भी कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक, चलिए इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद we'll move to the nucleophiles. तो छोटा सा ही है, nucleophiles में इतना ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं होगा. Let us see nucleophiles. Now gone through the electrophiles. Let me now go to the nucleophiles. What are nucleophiles? Nucleophiles. Nucleophile means nucleus यानी positively charged loving. तो इनको मैं कहूँगा positively charged loving या positive charge loving. Positive charge loving. They have affinity. They have attraction. They have love for positive charge. That's why they are called as nucleophiles. ठीक है? So they have positive charge affinity. They have the tendency to go at that position where we have positive charge. Electron density कम होनी चाहिए. ठीक है? So this is condition for the nucleophile. Now, nucleophile को define कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन किया था एनी मॉलिक्यूलर आयन कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स. जो मॉलिक्यूल्स कैपेबल होंगे टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स उनको आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल्स. ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आयन जिसको टेंडेंसी होगी जो कैपेबल हो टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स उनको आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल any molecule or ion capable of donating
capable of donating electrons is called as न्यूक्लियोफाइल। इसको आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसको आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। Now, again, I will move to the Lewis concept of acids and bases. Lewis acid electron pair acceptor और Lewis base electron pair donor. तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूक्लियोफाइल्स, एज लिविस बेसिस, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो इनको हम लिविस बेसिस भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियोफाइल्स रिप्रेजेंटेशन बाय NU आर कॉल्ड एज लिविस बेसिस। Why Lewis basis? What is a Lewis base? That is electron pair donors. Electron pair donor. जो electron pair donate करेगा उसको आप कहोगे Lewis base, और जो electron pair accept करेगा उसको आप कहोगे Lewis acid। वो previous case में हमने electrophiles में देखा। So nucleophile is a molecule RNA capable of donating electron। तो जब ये electron donate करेगा उसको मैं आराम से कह सकता हूँ Lewis base। Here I will say nucleophiles always donate electron in terms of pairs. That's why every nucleophile is a Lewis base and every Lewis base is a nucleophile. ठीक है, तो सारे के सारे nucleophiles Lewis bases है और सारे के सारे Lewis bases nucleophiles है। ठीक है। तीसरा point, what is condition of a molecule or an ion to behave as a nucleophile? Condition क्या है? कंडीशन एक ही है, प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट, कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक लोन पेयर, या आई कैन से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, this is condition for a molecule or an ion to behave as a nucleophile. Point number 4, nucleophiles react किस जगह करेंगे? ये किस जगह अटैक करेंगे? because they are attacking reagents। ठीक है, तो ये उस जगह अटैक करेंगे जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन स्कैरसिटी जहाँ पे हो। ठीक है, तो वो उस जगह अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कैरसिटी हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। सो दीज मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट और अटैक एट लेस इलेक्ट्रॉन density centers, less electron density, जहां पे electron density कम हुई है वहीं पे अटैक करते हैं। ठीक है। Now, reactions involving nucleophiles obviously are called as nucleophilic reactions। जिन reactions में attacking reagent nucleophile हो उनको आप कहते हो nucleophilic reactions। So the reactions involving nucleophiles are called as nucleophilic reactions। तो जिन reactions में attacking reagent nucleophile हो उनको आप कह सकते हो nucleophilic reactions। ठीक है, तो the reactions are called as nucleophilic reactions। And last point, कुछ examples अगर हम nucleophiles की लेंगे। ठीक है, एक ही चीज देखना है, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, मिनिमम वी शुड हैव वन लोन पेयर। ठीक है। नाउ एग्जांपल, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, वी कैन हैव X नेगेटिव, ऑल एनाइंस आर न्यूक्लियोफाइल्स। X नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, RO नेगेटिव है। ठीक है, NH2 नेगेटिव है। And even alcohol has the tendency to behave as a nucleophile due to the presence of 2 lone pairs of oxygen। ठीक है, ये एग्जांपल्स कुछ न्यूक्लियोफाइल। तो चेक क्या करना है, एनाइंस और सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स ही बनेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में
वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए जहाँ पे कम से कम एक लोन पेयर है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियोफाइल्स के। सो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? एनी मॉलिक्यूल और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। कंडीशन क्या है? कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन है कम से कम प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर और वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंस दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी कॉल्ड एज लिविस बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, दे रिएक्ट और अटैक किस जगह? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो ये उस जगह अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स इन्वॉल्व होते हैं उन रिएक्शंस को आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स हमने लिए, एनाइन सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हो गए बिकॉज दे कंटेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वही न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। ठीक, लास्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। Reactivity of a nucleophile is called as nucleophilicity. Let me write it here. The reactivity of a nucleophile is called as nucleophilicity. Reactivity of a nucleophile. Reactivity of a nucleophile is called as nucleophilicity. And this is very important. अंडरस्टैंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस माने में आप अंडरस्टैंड कर ले? मान ले आपके पास है दो न्यूक्लियोफाइल्स, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल हमने क्या कहा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ऑब्वियसली किसको देगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो कार्बन को ही देना है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, मैंने 4 बॉन्ड्स नहीं दिखाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई X ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे X ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे रहा है। ठीक है, जो इनमें से क्विकली सबसे पहले जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा, कार्बन के साथ क्विकली बॉन्ड बनाएगा, उसको आप कहोगे बेटर न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिक टर्म। ये है काइनेटिक टर्म। काइनेटिक टर्म का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल में से बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा, जो सबसे जल्दी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब अगर ए बना रहा है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, अगर बी नेगेटिव बना रहा है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। वो हमें कैसे पता चलेगा? बाय स्टडीइंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट, स्पीड, वेलोसिटीज ऑफ द रिएक्शन। लेट मी टेक रेट R1 एंड रेट R2। रेट मुझे बताएगा कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है। ठीक है, अगर R1 ग्रेटर देन है R2 मतलब पहली रिएक्शन कम टाइम में हो जाएगी, पहली रिएक्शन की वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड। रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ द सेकंड रिएक्शन। पहली रिएक्शन जल्दी हो रही है, दूसरी रिएक्शन को होने में टाइम लग रहा है, तब ये वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होगा दैट विल बी ए नेगेटिव ग्रेटर देन। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा हुआ कि R2 ग्रेटर देन R1, अगर ये वाली रिएक्शन जल्दी हुई इन कंपैरिजन टू फर्स्ट रिएक्शन, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर उल्टा होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल बी बी नेगेटिव ग्रेटर देन ए नेगेटिव। तो रेट्स है क्या? ये रेट इज द स्पीड, मेजर ऑफ स्पीड विथ विच रिएक्शन ऑकर्स। इफ R1 इज ग्रेटर देन R नेगेटिव, इसका मतलब A सबसे क्विकली, A जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा A ग्रेटर देन A नेगेटिव ग्रेटर देन B नेगेटिव, यानी A नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन B नेगेटिव। इफ R2 is greater than R1, then B negative is better nucleophile than A negative. This was all about nucleophiles. So in this lecture today we discussed everything about electrophiles and nucleophiles. We have discussed electrophiles completely. We have discussed nucleophiles. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम 12th क्लास में डिटेल में डिस्कस पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह क्लास 12th में डिस्कस होगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।